ایک صحابی ہیں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی خدمت پہ بار بار آتے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، درس و تدریس ہے، حدیث کا درس ہے، قرآن کا درس ہے، سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلیبیب شادی ہوئی تمہاری؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں شادی نہیں کرتے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں تیرا کالا کلوٹا، میں کوئی خوبصورت آدمی نہیں ہوں، نہیں میرا کوئی بڑا خاندان ہے، مجھے لڑکی کون دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول آپ جتنے بار بھی پوچھیں گے میں یہی کہوں گا میں کالا کلوٹا ہوں، میری کوئی خوبصورتی نہیں ہے، نہیں میرا خاندان کوئی معروف خاندان ہے، مجھے لڑکی کون دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ فلاں انصاری صحابی کے پاس جا کر کے میرا سلام عرض کر دینا۔ جلیبیب دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کہا اور اس کے بعد کہا پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں اپنا سلام عرض کیا ہے۔ انصاری صحابی جھوم اٹھے، کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں، آقا کا سلام ہمیں پہنچا ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ کہا آگے تو سنو۔ جلیبیب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کریں۔ صحابی رسول خاموش ہو گئے، کہا کہ میں گھر اندر داخل ہوتا ہوں، بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ بیوی نے کہا ہماری بچی خوبصورت ہے اور یہ ٹہرے کالے کلوٹے، کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے، ہم اپنی بچی کا نکاح اس سے کیسے کریں؟ کہا کہ انکار کر دو۔ بات جب دونوں کے درمیان ہو رہی تھی، بیٹی باپ کو سن رہی تھی، جیسی باپ آگے بڑھا صحابی سے کہنے کے لیے کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، لڑکی بڑھ کر کے آتی ہے، کہتی کہ والد محترم رک جائیے، حکم کس کا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کون آیا ہے، کس کا رشتہ پیش ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو پیش کیا ہے، آپ کون ہوتے ہو اس رشتے کا انکار کرنے سے؟ ہم شیخ خاندان سے ہیں، ہم فلاں برادری سے ہیں، ہمارا اتنا بڑا قبیلہ ہے، ہم نے کبھی بھی جہیز کو نہیں مانا، جہیز کا مطالبہ نہیں کیا، مگر کیا کرنا آج کل کا رواج ہے، مگر پھر بھی نہیں بولتے ہم۔ آپ اپنی خوشی سے جو بھی دینا چاہتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے کس طریقے کا چور راستہ ڈھونڈ لیا ہے ہم لوگوں نے، پھر اس بچی کو اپنے گھر کو لے کر آتے ہیں اور اسے نتنے باتیں کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا، ایسا کہ جیسا کہ اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، بستر اس کا، پلنگ اس کا، کرسی اس کی، فرنیچر اس کا، ٹی وی اس کی، فریج اس کا، واشنگ مشین اس کا۔ اس کے بعد میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ایسے حالات ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا ہے۔ آج معاشرے میں قتل و غارت گری 1 انچ کے لیے، 2 انچ کے لیے، ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو گھور کے دیکھنے کے لیے اور اپنی محبوبہ کو کوئی دوسرا نوجوان دیکھتا ہے تو وہ نشے کی حالت میں آتا ہے اور اس کا قتل کرتا ہے۔ ذمہ داران ملت خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے اس تماشا دیکھتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے بچے کو جوڑا نہیں جم رہا، ہماری بچی کو جوڑا نہیں جم رہا، یہ کمپلینٹس میرے پاس مت لائیے، اپنے گھر کا معاملہ آپ اپنے گھر میں طے کر لیجئے۔ جہیز کا اگر مطالبہ ہوگا تو آپ اسے ہمارے پاس لائیے، انشاءاللہ تعالی اس کا ٹھکانہ جہاں پر ہے ہم اس کے ٹھکانے پر بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں مثال کے طور پر پھر کہتا ہوں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے لے کر کے آج تک دیکھیں آپ کو مسلسل تواریخ میں ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں ملیں گی کہ جن کے عزم اور حوصلے پر انقلاب آیا ہے، معاشرے سے غلط رسوم و رواج ختم ہوئے ہیں، لیکن آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ان کا سارا وقت سیریل دیکھنے میں چلا جاتا ہے، اور وہ سیریل جو خودکشی کا راستہ بتاتا ہے وہ سیریل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے دیکھتی ہیں۔ وہ گندے سیریل، جھوٹے سیریل جو ہمارے پڑوسی ملک نے سپورٹ کیے ہمارے اس ملک کے۔ آج خواجہ کالونی میں مجلس خدمت ملت کے زیر اہتمام جناب اصغر حسین صاحب نے حالات حاضرہ و جہیز کی تباہ کاریوں کے عنوان سے ایک جلسہ، کامیاب جلسہ منعقد کیا۔ معاشرے سے جو دن میں 8-10 فون چھوٹے چھوٹے گھریلو اختلافات پر آتے ہیں، وہ اختلافات
को लेकर हमें कंप्लेंट ना करें। अगर कोई मर्द जहेज़ का मुतालबा करता है तो आप उसकी कंप्लेंट हमारे वॉलंटियर से या फिर मुझसे कीजिए, हम उसे समझाएंगे, बताएंगे, उलमा से रुजू कराएंगे, दीन इस्लाम से वाकिफ़ करवाएंगे। मान गया तो ठीक, नहीं तो चंबार की देव को चप्पल की पूजा क्या कैसी की जाती है वो भी हमारे वॉलंटियर जानते हैं। कानूनी कार्रवाई के ज़रिए से उसे जेल में डालेंगे। तो लिहाजा मेरी यही कंडीशन है कि आप छोटे मोटे इख्तलाफात को अपने घरों से इसका ख़ात्मा कीजिए। आप अपने घरों में क़ुरबानी के जज्बे को पैदा कीजिए, सब्र का मामला कीजिए, अपनी सास को बहू माँ माने और सास अपनी बहू को बेटी माने, इख्तलाफात ख़त्म होंगे। इख्तलाफात मसाइल को ख़त्म कीजिए। नाजायज़ तरीक़े से जहेज़ के मामलात आते हैं तो माशरे में ज़िम्मेदारान पूरे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला इस लानत को हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कौन सी आँखें हैं, वो कौन सा दिल है जिसने आयशा का वीडियो को देखा और बेचैन नहीं हुआ। तो ये बेचैनी पूरी माशरे में फैली हुई है, मगर आयशा के उस सुसाइड की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आयशा बुज़दिल थी, आयशा बेवकूफ़ थी, क्योंकि सुसाइड किसी भी मसले का हल नहीं है। दीन इस्लाम में कई एक रास्ते रखे हैं, उस रास्तों को चुना जा सकता है। इसी तरीके से आयशा के वीडियो को आने के बाद में बहुत सारी ख़वातीन ये समझ रही हैं कि छोटी छोटी बातों पर हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। तो मैं उन ख़वातीन से ये कहना चाहता हूँ कि आपका रास्ता सोशल मीडिया या रोड पे आना नहीं है, आपका रास्ता मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, दारुल इफ्ता है और दीगर शहर के ज़िम्मेदारान हैं। ये तमाम नहीं होने के बाद में कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, महिला पुलिस स्टेशन है, ये तमाम चीज़ें हैं। फेसबुक पे डालकर आप अपने आप की ख़ुदकुशी कर रहे हैं। आप हर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए आप डोर क्लोज़ कर रहे हैं। ये हिमाकत मत कीजिए। यकीनन जुल्म अगर हो रहा है, जुल्म नहीं होना चाहिए। उस जुल्म का आप अगर हल सोशल मीडिया पर डालकर कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे माशरती बुराइयों के ख़िलाफ़ इस जलसे को रखा गया, जिस जलसे से जहेज़ की तबाहकारियाँ के ताल्लुक़ से बयान किया गया और मिल्लत इस्लामिया में नौजवानों में नशे को लेकर क़त्ल व गारतगिरी हो रही है, उस पर मजम्मत की गई। सूद की लानत पर कहा गया, शराब की लानत पर कहा गया। आप बताइए, मिल्लत अगर इतने बुराइयों में मुलविस है तो हमें कमज़ोर और ख़त्म करने के लिए क्या हमें RSS की ज़रूरत है, क्या बजरंग दल की ज़रूरत है? हमें अगर हम इतने ज़्यादा माशरती बुराइयों में अगर रहेंगे, हमारे घरों में इंतशार ख़त्म नहीं करेंगे, हमारी घरें, हमारी नस्लें कभी परवान नहीं चढ़ सकेंगी। ये हमारा दर्द है जो आपके ज़रिए से मिल्लत इस्लामिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि अपने छोटे मोटे इख्तलाफात को ख़त्म कीजिए, क्योंकि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस खिदमत मिल्लत के प्लेटफॉर्म से इस बात का भी मैसेज दिया गया कि यकीनन हम तमाम मसालिक से हमारा ताल्लुक़ है, मगर मसाइल की बुनियाद पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हमारे मसाइल पूरे एक हैं और उस मसाइल का हम मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ तरीक़े से उस बुराइयों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। आज का ये इजलास हालात हाज़रा और जहेज़ की तबाहकारियाँ के उन्वान से जो मुनक़िद किया गया नौजवानों की तरफ से, बहुत पहले से ही जहेज़ के मामले को लेकर के बहुत सारे हालात पैदा होते रहे हैं हमारे मुल्क में ख़ास तौर से। लेकिन इस वक्त आयशा की ख़ुदकुशी को लेकर के पूरे मुल्क के अंदर जो एक माहौल बना हुआ है जहेज़ के ख़िलाफ़, ऐसे में नौजवानों ने जो प्रोग्राम रखा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुनासिब प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को पूरे शहर के अंदर और शहर के मुख्तलिफ़ महलों में मुनक़िद किया जाना चाहिए। और इस उन्वान से एक बेदारी ये भी लाने की ज़रूरत है कि हमारा नौजवान शादी से पहले बीवी के क्या हुकूक़ होते हैं उसकी भी तैयारी करे, और जिस बच्ची का निकाह हो रहा है उस बच्ची को भी चाहिए कि इस्लामिक एतबार से शौहर के क्या हुकूक़ हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या हुकूक़ हैं, किस तरह रहना चाहिए, क्या सिस्टम है, इसकी भी जो है तलक़ीन होनी चाहिए, तरबियत भी होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो है कि इस उन्वान से जहाँ हम जहेज़ एक लानत है, जहेज़ एक नासूर है और जहेज़ गैर इस्लामी है, गैर इंसानी है और ये पूरे माशरे को तबाहकारी की तरफ ले जा रहा है, ये पैगाम दें। वहीं ज़रूरी है कि हम इस्लामिक जो सिस्टम ऑफ लाइफ है
उस सिस्टम को भी हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में नौजवानों के साथ शेयर करें और समाज के लोगों के साथ शेयर करें, इसलिए कि हमारे अंदर जो ताकत और हिम्मत और जज्बा पैदा हो सकता है वो कुरान के उस पैगामात के ज़रिए से और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है और जो तरतीब है उस एतबार को अगर हम लाएंगे अपनी ज़िंदगी में तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है और ये बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो सकती हैं। बीवी के और शौहर के हुकूक़ के बारे में क्या है मालूम है, अक्सर मैं हमारे गुलबर्गा के खाजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई वो अपने जितने भी खाजी जो भी खाजी निकाह के वास्ते भेजते हैं उन्हें ये बोलिए कि भाई निकाह से पहले एक 10 मिनट शौहर के और बीवी के हुकूक़ के बारे में अगर बोले और जहेज़ के ताल्लुक़ से बोले तो जितने भी लोग वहाँ पर आए हैं शायद उनको मालूम होता। और ये जो माशरे के अंदर जो चल रहा है जहेज़ का, ये आने वाले दिनों में आज से अगर चालू करे तो आने वाले दिनों में अगर आप पहल करें तो हर वार्ड में हर गांव में हर वार्ड में ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दिए तो उन्होंने अपने एजुकेशन देने के बाद उनको ये रहता कि भाई मेरा शौहर अगर मेरे को तकलीफ़ दिया तो मैं इंडिपेंडेंट ज़िंदगी कुछ जॉब करके और कुछ ये करके मैं मेरे बच्चों को लेके मैं रहती हूँ बोल के जो मरने का जो वाक़या आए दिन सोशल मीडिया में आ रहा है, हर गाँव में आ रहा है, वो इंशाल्लाह अगर ऐसा होगा तो रुक जाएगा बोल के इस मौके पे मैं बोलना चाहता हूँ। और असगर हुसैन साहब और तमाम उनकी टीम को मैं इस जलसा करने के लिए मुबारकबाद देता हूँ।